वेलकम टू टुडेस एपिसोड ऑफ आभास पॉडकास्ट। हमारे साथ आज एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, शालिनी खन्ना। शालिनी खन्ना एक रिनाउंड एडवोकेट और लीडर हैं डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन की फील्ड में। वो बहुत सालों से काम कर रही हैं, आई थिंक मोर देन 20 years। उन्होंने अपना करियर पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस, दृष्टिहीन और बच्चों की एम्पावरमेंट के लिए समर्पित किया है। वो स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की चेयरपर्सन है। यहाँ वो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स की स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करती हैं और बहुत एफर्ट्स डालती हैं। वो नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड एंड डिसेबिलिटी स्टडीज की भी डायरेक्टर रह चुकी हैं। उनके एफर्ट्स ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। उन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसमें टॉप 75 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बाय नीति आयोग एक है। शालिनी का काम सिर्फ एम्पावरमेंट का सिंबल नहीं है, बल्कि उन्होंने डिसेबिलिटी इंक्लूजन और वर्क प्लेस इक्वालिटी के बारे में भी बहुत लोगों की बहुत सोच बदली है, बहुत काम किया है इस एरिया में। आज हम उनके साथ उनके सफ़र में उनके स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के चैलेंजेस और सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। उन्हीं से जानेंगे और समझेंगे कि हम सब मिलके एक इंक्लूसिव फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। वेलकम शालिनी टू आभास पॉडकास्ट। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए इधर आने को और हमसे बात करने के लिए। इट इज़ ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, Ava. It's always a pleasure talking to you. यहाँ सेम है। तो शालिनी, जब से मैं देख रही हूँ आप बहुत सालों से इसी एरिया में डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं, सोशल सेक्टर में काम कर रही हैं। तो कैसे और क्या हुआ कि आपने ये डिसाइड किया कि आपको ये करियर ऑप्शन चाहिए था, या पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस के लिए स्पेसिफिकली आपको काम करना था, बिकॉज यू हैव डेडिकेटेड होल ऑफ योर लाइफ इन दिस। Mhm. Um, I won't say dedicated life. I mean, it's a lovely career. I know there's not much money in it. When you think of a career, you think of money, of course. But at the same time, there's so much to do. For creative people, I think it's a ideal work because not much has been done. And at any point in time, not much has been done. Um, especially in India, when I started in 1997, 98, I started with the voluntary work at NAB Arkipuram. And I found that I am needed in the work. I felt, yes, there is a sense of purpose. And this sense of purpose is also very, very personal, I think. Okay. Um, it's not really, everybody doesn't find a sense of purpose in the same things, Yeah. you know. And when you say that helping others is a uh, really good sense of purpose and all, I feel even when you're helping others, you have to satisfy a sense of um, satisfaction in the work that you're doing. Only working for others will never bring you satisfaction for a long time. And I definitely felt that my skills were at work. Yes, I thank life to have brought me to that place. I was a market researcher and also I had done my industrial relations and personnel management. So at that time, many companies did not have an HR division and it was all admin and HR mostly. I didn't want to do that. So when I started working at Arkipuram, the NAB school branch, I felt there was a lot of need of HR, you won't believe it, between the workers and the children. Okay. There were not many workers, and because it's an NGO ultimately, and the children were of all age groups going to school, and right from 5 years old to 20 years old. And of course, there was not a very good understanding between the uneducated workers and these children who were going to very good schools and medium schools, all kind of schools. And I felt that, I mean, I did some work there of motivating children for some reform and
making some better practices to make them feel more included and responsible for the place they were living in. Yeah. So slowly, I mean, after 3 months, I think I started feeling I love this work. And Arkipuram NAB allowed me to keep doing my market research alongside at that time. I was a freelancer. Mhm. So it kept working beautifully. I was getting my money from somewhere, but I was getting my soul satisfaction somewhere else. Yeah. And I must say, it was the happiest time of my life because Yeah. I think the first time I rediscovered myself, what I was, what I wanted, and what I like doing the best. And slowly, yeah, in that research part only, I received a research from Asian Blind Union Mm. for doing a large study on status of blind women in India. Okay. And I was the key coordinator, and it was a pan-India research. Took time, took about a year. By the time I think we drafted the report for that, um, it was quite a opening of new world for me to see how so much work is required in this world. Mhm. And at that time, blind women were in a very, very bad state, I must say, because they were, those who were in schools, very different story. But after schools, there were no platforms. There was just no accessibility whatsoever. And there were so many blind women who were sitting at home and they were not allowed to come out of homes. Mhm. And that only that research showed us it was a very dismal picture. Mm. And then consequently, NAB India decided to open a center for blind women as a result of that study. And they asked me if I would like to open this place and start something there. And so I was very unsure, Abha. I was not brought up in a women are different kind of a scenario. But Mm. that study, as I said, had opened my eyes. And though we didn't have much direction, how to do it, what to do, there were no grants for disability at that time, if you remember. And especially for vocational training, there was Yeah. nothing Yeah. much for the blind. And with a lot of trepidation and doubt, I started the center. But life is kind. It hard work, yes, and the society, it everything helped, and slowly, yes, we are where we are. Yeah, that's great. So शालिनी, आप स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की चेयरपर्सन एट प्रेजेंट, तो अकॉर्डिंग टू यू कौन से इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सीखने जरूरी हैं अपनी उनकी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए या आगे अपने आप को डेवलप करने के लिए? तो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स डू यू थिंक शुड बी देयर? नाइस क्वेश्चन। मुझे लगता है सारी ऑफ कोर्स सब डिसेबिलिटीज की अपनी अपनी टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। जी। लेकिन एक बात जो सब डिसेबिलिटीज के लोगों को सीखने की जरूरत है वो है दुनिया कैसे चलती है, तो दुनिया के साथ मर्ज कैसे करना है। राइट। क्योंकि सारी अवेयरनेस देने के बावजूद दुनिया बड़ी अनअवेयर है। वो वो नहीं आके मर्ज होती। इट्स हम्म। वेरी स्टूपिड एंड आयरॉनिक, कि जिसकी लिमिटेशंस हैं वही जाके मर्ज होने की कोशिश करता है, मेन स्ट्रीम उसको होना पड़ता है। हम्म। So mainstreaming qualities and skills, I think soft skills is what every employment sector demands. या। स्किल तो हम सिखा लेंगे, काम करना तो हम सिखा लेंगे, लेकिन अ, कैसे कैसे आकर आप एंटर भी कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड में, वो स्किल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अ, ये बात बहुत लाइटली ली जाती है, पर मेरी सम 27 years के करियर में मैंने ये सीखा है कि जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग साथ देती है ना, वो कोई स्किल साथ नहीं देती। बिल्कुल। यू नो एंड एंड टू ऑल्सो understand sincerity and value of work in our life, या। in spite of all pensions which are very minimal in our country, हाँ। in spite of all the support that
people with disabilities might get from different quarters to survive. But Hmm. only surviving cannot bring happiness to Yeah, anyone. yeah, सेटिस्फेक्शन जो चाहिए होती है। Absolutely. And also to live a quality range of life, you हम्म। need to get out. या You need to जैसे find आपने your own कहा work. सेंस ऑफ पर्पस, दे आल्सो नीड अ सेंस ऑफ पर्पस, लाइफ में पर्पस Yes, होना जरूरी है। absolutely. और हम्म। चाहे वो सेंस ऑफ पर्पस आपका फैमिली बनाना है, हाँ। आपका सोसाइटी में अपना नाम कमाना है, चाहे वो दूसरे के लिए काम करना है, या। उस सब के लिए घर से बाहर निकलना हम्म। और एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी अपने आप को रूटेड रखना हम्म। बहुत जरूरी है। और हम्म। उसके लिए आपको आपकी पर्सनालिटी की रिचनेस ही आगे लेके जाएगी, हम्म। कोई स्किल नहीं लेके जाएगी। या वो और चाहे मैं उस निकालूं तरह या की कुछ स्किल में मैं समझती हूँ एक सेल्फ एडवोकेसी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दे बहुत नीड जरूरी। टू लर्न दैट। आभा, आई एम श्योर जब आप कहीं जाती हैं तो आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करके आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिसेबल लोग हैं जो अमेजिंग रोल मॉडल, हम्म। हम्म। बाहर जाएंगे थोड़ा सा भी किसी मीटिंग में या कहीं भी, अपनी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस से और अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी से, पर्सनल सेंस ऑफ सिक्योरिटी और ग्रूमिंग से हम्म। आप अपनी जगह बना ही लेते हैं, उस कमरे में, उस हॉल में, उस सोसाइटी में, उस फैमिली में। आप अपनी जगह क्यों नहीं बनाएंगे? हम्म। तो वही वो एक बहुत बड़ा सेल्फ एडवोकेसी होता है, या। यू नो या। एंड ऑफ कोर्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर राइट्स इज सो इम्पोर्टेंट, ट्रू। बट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्यूटीज इज ऑल्सो वेरी वेरी, सिर्फ सेंस ऑफ राइट्स तो काम नहीं देगा. After some हम्म। time, nobody will want you if you're only demanding rights and you're not there to do what you need to do. या। So that's why I said that richness of personality is so, so important. या। And we are also delighted to meet people who have, done so much work in spite of their limitation of disability. Or, of course, I'm into training of different disabilities, especially blind people. And I have seen some, sometimes some people come out as miracles. You feel, my God, थोड़ी सी polishing, थोड़ा सा training, and look at what they have achieved in life. So वो चलते हैं और advocacy होती है, मुझे ऐसा लगता है, खड़े होते हैं और advocacy होती है. सो स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं आपके लिए, आप जिस तरह का काम करती हैं, या इवन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए चैलेंजेस क्या हैं मेजर? Though mostly we also say, and it is a fact that स्किल सिखाने के बाद एम्प्लॉयमेंट्स के दरवाजे सबके लिए उतने अच्छे से नहीं खुले रहते. और या। जब हम स्किल टीचिंग की बात करते हैं या आगे एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है आईडी, पीपल विद आईडी एंड पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट काफी सफर करते हैं. या। बिकॉज उन यू नो हर जगह उतनी सेंसिटिविटी और उतनी सेंसिटाइजेशन और उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं. हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्किल्स सीखने के लिए तो बहुत लोग एकदम रेडी हो जाते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है ना, डेफिनेटली रेडी हो जाते हैं. लेकिन अभी भी आउटसाइड वर्ल्ड, मेन स्ट्रीम वर्ल्ड को उनकी स्किल्स के बारे में कोई खास नहीं मालूम. बिकॉज खाली अर्बन सिटीज, आई मीन स्पेशली मेट्रो सिटीज में, यस, फिर भी है सेंसिटाइजेशन अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन the readiness to have diversity amidst you is not so much. नॉट मच, राइट। या। बात होती है डाइवर्सिटी इंक्लूजन की, लेकिन फिर से हर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर या हर ऑफिस ढूंढता है सबसे आसान हम्म। जो पर्सन होना मेरे लिए, उसको मैं ले, यू हम्म। नो हैंगिंग फ्रूट्स कि जिनके मुझे जहाँ ज्यादा काम ना करना पड़े एक्सेसिबिलिटी पे, वो मुझे दे दीजिए. हम्म। लेकिन जैसे ही एटीट्यूड्स को ठीक करने की बात आती है, वो सबसे मुश्किल काम मेन स्ट्रीम वर्ल्ड के लिए, या। कि अपने एटीट्यूड्स, अपने मेंटल सेटअप्स को चेंज कर सकें, वो बहुत मुश्किल है. हम्म। और स्किलिंग में भी मुझे लगता है इवन पीपल विद डिसेबिलिटीज के भी कुछ लोगों के एटीट्यूड्स उनके भी ठीक नहीं होते हैं, वो भी ठीक करने की बड़ी जरूरत है.
बिल्कुल। कि काम करने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बैठे बैठे काम नहीं होगा। हम्म। तो हर एक इंसान को मेहनत करके ही फल मिलता है भाई, आपको भी मेहनत करके ही फल मिलेगा। हम्म। तो ये दोनों तरफ की बात है, लेकिन मुझे लगता है जो मेन स्ट्रीम सेक्टर है, जो वो बाहरी दुनिया ही बन के रह जाता है। जब तक वो खुद भी सम्मिलित होने की कोशिश नहीं करेगा ना, वो समावेश पूरी तरह होता नहीं है। सो अब अगर काम मिल भी जाता है, सो वर्क प्लेस में भी इंटीग्रेशन के टाइम पे बैरियर्स आते हैं कि इवन आपको काम भी मिल गया, आप जा रहे हैं ऑफिस, तो वहां पर एब्सोल्युटली इंटीग्रेशन, जब हम चाहते हैं कि एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन हो या एक्सेप्टेंस हो, वहां पर भी बहुत बैरियर्स आते हैं। बहुत तो अब मुश्किलें हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोगों हम को तो कहते हैं कि 22 डिसेबिलिटीज हैं, 20 डिसेबिलिटीज हैं, 25 डिसेबिलिटीज हैं, लेकिन अल्टीमेटली बाहर निकल के आना ही बहुत सारे डिसेबिलिटीज के लिए आसान नहीं होता। बिल्कुल। और एज आई सेड, जो सिवियर डिसेबिलिटीज बन जाती हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए, हम्म। उनके लिए तो बिल्कुल भी इंटीग्रेशन इतना मुश्किल बनता है। आप जैसे, आई गिव यू एन एग्जांपल, वी वर्किंग इन उड़ीसा राइट नाउ हम्म। फॉर ब्लाइंड पीपल, एंड उड़ीसा में ये बात ही किसी ने जैसे सुनी ही नहीं थी कि ब्लाइंड लोग आकर फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, ऑफिसेज में कर सकते हैं। आई मीन, टू मी इट साउंडेड सो एलियन कि क्या बात कर रहे हैं, बट दिस इज अ रियलिटी, एंड वी हैड डन अ बिग, स्किल काउंसिल ने भी बहुत बड़ा एक इवेंट किया ताकि हम एम्प्लॉयर्स को बुलाएं, दिखाएं ओके। कि विजुअल इम्पेयरमेंट काम कर सकता है। वी ब्रॉट सक्सेसफुल पीपल सिटिंग ऑन द स्टेज। हम्म। But ultimately, when we started doing recce work in factories, हम्म। packaging का काम जो कि मंडेन है, जो कि मैनुअली सिर्फ एक तरह का काम या दो तरह का काम ही है, जिसमें बहुत ज्यादा भी स्किल की जरूरत नहीं है, और हम्म। ट्रेन्ड बच्चे भी जब हमने ले गए हम फैक्ट्रीज में, तो अल्टीमेटली दे वुड से लो विजन बच्चा दे दीजिए मुझे, ओके। हाँ, टोटली ब्लाइंड के साथ। मुझे हम्म। डर लगता है। अच्छा। ये जो मुझे डर लगता है, ये जो हम्म। डर है पेरेंट का, फैमिली का, उसके बाद एम्प्लॉयर का, हाँ। उसके बाद पड़ोसी का, ये जो डर है लोगों के, हम्म। ये डर उस इंसान की जिंदगी के लिए बड़े भारी पड़ जाते हैं। बिल- वो डर उसको लगना चाहिए ना। हम्म। अगर उसे लगेगा तो उस पे काम कर सकते हैं, वो हम्म। अपनी स्किल पे काम करेगा, वो हम्म। अपनी मोबिलिटी पे काम करेगा, लेकिन आपका डर उस पे कैसे काम करेगा? तो हम्म। ये इंटीग्रेशन के लिए ये जो फियर्स है ना, इनका निकलना बड़ा जरूरी जरूरी है। तो है। आपको क्या लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी आजकल बहुत डेवलप हो रही है, हर जगह हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सेसिबल बनाने में क्या टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है, या कैसे कर सकती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? बहुत। आई आई फील, हम मजाक में समटाइम्स कहते हैं द बेस्ट टाइम टू बी डिजेबल्ड इज राइट नाउ। बहुत टेक्नोलॉजी है। हम्म। जो पहले के लोग थे, बहुत सफर किए होंगे, हाँ। जिनके पास कुछ नहीं था। हम्म। अभी तो टेक्नोलॉजी हैज मेड वंडर्स। यू नो एक डेफ ब्लाइंड इंसान जिसको ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, या हम्म। इवन अ डेफ पर्सन और अ ब्लाइंड पर्सन, आई मीन, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो स्क्रीन नहीं होता, तो डेफ लोग तो क्या? बात ही नहीं कर सकते, बिल्कुल। घरों में लॉक्ड रह जाते हैं। हम्म। है ना, हम्म। आज वो आपको अपनी स्क्रीन दिखा के अपनी बात कह लेगा हम्म। आराम से, और कहीं दूर बैठे वो भी वैसे ही बातचीत कर लेगा, वरना वो तो कर ही नहीं पाएगा। हम्म। ब्लाइंड के लिए तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ काम नजर ही नहीं आता है अब। हम्म। And a deaf blind person, if you have ever seen them talking, chatting with you, it's amazing how they use technology. And वही इंसान है जिसके अंदर फियर्स हैं, जो इंटीग्रेट करने को तैयार नहीं है, उसने टेक्नोलॉजी बनाई सबके इस्तेमाल के लिए। हम्म। I guess the world is not all black, there is light to it. या। And there are people, there are people who are continuously these thinking technology. I met a blind girl the other day, and Aishwarya, and हम्म। she has made an app, a blind woman, and because वो late blind हुई, और जिससे आप अपने कपड़े के ऊपर एक कोडिंग लगा सकते हैं कहीं भी, और फिर उसके बाद उस ऐप से उसको स्कैन करके वो बताएगा आपको ये काला है, ये नीला है, इसके मैचेस क्या हो सकते हैं, या एक्सेसरीज, ये आपकी बेल्ट है ब्राउन कलर की है, ये जो भी आप फीड करेंगे, हम्म।
के बाद जब आप निकालेंगे वो बता देगा ये बेल्ट ब्राउन कपड़ों के साथ जाएगी. Just imagine. वंडरफुल. I felt so nice listening to her and looking at it, and I felt, look at the extension of mind. It doesn't stop anywhere, and thankfully, जो भी आपके मोबाइल में एप्स हैं, अब उन पे काम होता है कि चलिए वो एक्सेसिबल भी हो जाए, उसको सबके लिए बनाया जाए. दो दैट वर्क इज वेरी स्लो, सो मेनी पीपल हैव टू फाइट फॉर इट, या. बट it's only because of technology, I think we are where we are. Otherwise, we would still be, in a stone age. So, शालिनी, आपको कई अवार्ड्स, कई रिकॉग्निशंस मिले हैं. टॉप 75 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, दैट इज ग्रेट. एंड सो आपको कैसे लगता है ये रिकॉग्निशंस आपके काम को इन्फ्लुएंस करती हैं, या डिसेबिलिटी इंक्लूजन में और आगे आपको मोटिवेट करती हैं कि आपने ये करना है? Always, na awards, आपको भी बहुत मिले हैं, and beautiful awards. But always the awards egg you on, they motivate you to work more. In fact, they become a responsibility also या. on your shoulders, that you have been recognized so widely, and now you have to keep proving it, that there's more to do. You have to keep working towards this goal. तो मुझे नहीं लगता मुझे बहुत अवार्ड्स मिले हैं. आप मुझसे ज्यादा मिले होंगे, आप मिलने भी चाहिए. लेकिन yes, awards are very important, and they enhance your motivation to work, because disability sector में otherwise motivation की बहुत कमी है. You need self motivation most of the time. And ये बात मतलब मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को रियलाइज होती है, पर जो लोग चलते जाते हैं उनको रियलाइज हो जाता है कि चलते जाना कितना मुश्किल है, मुश्किल है. कितना मुश्किल है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो द अवार्ड्स शुड ब्रिंग ऑन योर शोल्डर, दैट दुनिया आपकी तरफ देख रही है और आपको एक्सेप्ट कर रही है इस रोल में, और अब आपको यू नो उनके लिए काम करना ही है. करना है. तो आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज इस समय ज्यादा हैं, जिनकी तरफ वो काम कर सकते हैं, वो अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं? कुछ सजेशन दे पाएंगे आप? लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के लिए तो मुझे लगता है दुनिया में कोई अंत नहीं है. देर आर सो मेनी variety of tasks that they can do, everything they can do. If the building is accessible, if the room is accessible, mostly they're able to do everything. And thankfully, thanks to so many people who are working for the deaf, even I think for hearing impaired, the options are many now. Because of the technology, they can, I went to Japan recently with the Orissa government, and I saw that the Japanese, they have a university for deaf and for blind. And in that university, they teach architecture on a graduation level to deaf people. ओके. या. Just imagine. Because yes, of course, all architects work with technology, mostly graphics. So and the world is becoming graphic oriented right now. So, so I feel there's no limit to your imagination. अगर वो आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं, एंड अगेन सी, फिर दिमाग में आता है कि क्लाइंट से कैसे बात करेंगे और एडजस्ट हो जाएंगे उस वर्किंग एटमॉस्फेयर में जो इतना कट थ्रोट कंपटीशन है. तो then personality plays a big role. How much have you been able to smarten yourself? And they said कि बहुत तरीके हैं. आपके एप्स में टेक्स्ट टू स्पीच है, और अकेला तो कोई काम ही नहीं करता है फील्ड में. एक आर्किटेक्ट नहीं काम कर रहा होता है, एटलीस्ट 2-3 लोग काम कर रहे होते हैं. तो बातचीत वाला काम साथ वाला कर लेता, बिल्कुल. और डिजाइनिंग का काम डेफ आर्किटेक्ट कर सकता है. और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है. एब्सोल्युटली वंडरफुली, देयर इज नो एंड टू इट. Also I saw that I mean हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा how deaf people have been taken and absorbed in the hospitality sector. It was nowhere in the world earlier. It's ये इंडिया की देखा देखी शुरू हुआ है, you won't believe it. Or even for blind people, there are tasks now. We run a cafe by blind people, and it's been
it's been accepted wonderfully. I mean, now so many corporates are asking us now, मुझे ये कैफे दे दो, बिकॉज उन्हें लगता है ये इंक्लूजन का बड़ा अच्छा तरीका है, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, दे हैव टू रन समथिंग, दे विल अर्न देयर मनी. Yeah. And enterprise, I feel, is the key right now to independence for many disabilities. Mm-hmm. आप सोचें कि हर हर डिसेबिलिटी के साथ, मैंने सुना है देयर इज अ कैफे इन पुणे which autistic people run. Yeah. Mm. Awesome. And if two people can do it, many people can do it. Yeah. There are so many careers. In Skill Council, we have identified more than 300 careers for people with disabilities now. Okay. 300 is a large number. And the Mm-hmm. number is increasing every day. Mm-hmm. We are open to so many NGOs that आपके पास कोई नया स्किल है, आपने उसको करवा के देख लिया, उसके ऊपर लोग काम कर पा रहे हैं और पैसे कमा पा रहे हैं, Hmm. come formalities and let's apply for a new course. Hmm. And if you know, and if people know that Skill Council for persons with disabilities cuts across about 36 councils in the country. Okay. Every skill and every trade Hmm. comes under a council, short-term courses, Hmm. all short-term courses. Okay. And when we say this particular skill council cuts across all councils, that means that we can approach any skill council to Okay. say that this skill for this disability looks viable to us. There are evidences and we want to apply. Yeah. And they definitely consider. Hmm. I mean, what better example that we train blind women to be breast cancer detection experts. Okay. And it was the most difficult task to get that course certified from the Health Council. And we got it done because we had to prove to them that, see, there is success. Hmm. So the sky is the limit right now, Abha. I hope this podcast is heard by NGOs also and people with disabilities also. Hmm. Because आज जितना task people with disabilities के पास है अपने आप को ऊपर लाने का, उतना ही importance NGOs का भी है to try out new things. I know there are limitations, but there are enough possibilities these days. If they are trying on to something new, then they must come ahead and make some more effort to apply and tell us that yes, there is evidence that it's been successful and we are open to get it certified. You know, even for people with ID, हमारा focus है right now people with ID के लिए intellectual disabilities, जो कि काफी मुश्किल है disability, खासकर उसे इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज उसमें बहुत रेंज है डिसेबिलिटी की, किसी का कितना डिग्री है, किसी का कितना डिग्री है. तो उनके लिए भी मुझे लगता है एंटरप्राइज एक बहुत अच्छा सेक्टर है. बहुत लोग कहते रहते हैं शेल्टर वर्कशॉप्स में वो अच्छे से काम कर सकते हैं. और मिट्टी कैफे के साथ हमने देखा कि बहुत सारे लोग विद आईडी काम कर रहे हैं, जी. डिफरेंट डिसेबिलिटीज के साथ काम कर रहे हैं. Hmm. तो मुझे लगता है अपनी इमेजिनेशन चलाइए, स्किल्स का अंत नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. अभी मैंने देखा कि NIVH में एक रेडियो हैज बीन अवॉर्डेड जिसमें ब्लाइंड लोग काम करते हैं, कम्युनिटी रेडियो. अच्छा. जस्ट इमेजिन, Yeah. व्हाई नॉट. True. बहुत बढ़िया. डेफ ब्लाइंड में भी थोड़ा सक्सेस है, लेकिन मुझे लगता है अगेन we have to keep running our imagination. Sameer Dhale has become a name, but there are others also who Hmm. have really achieved. Sameer went and made his own organization, and if you've ever met him, he's totally deaf blind and he Yeah. travels on his own. Yeah, I met him. Yeah. It brings goosebumps to me. If that man can perform, Anyone. anybody can. Yeah, anyone. Anybody can. It just requires courage and creativity. Yeah. So शालिनी, चलते चलते आखिरी क्वेश्चन कि आपने अपनी जर्नी में बहुत आपको पर्सनल लेसन्स मिले हैं, आप इतने सालों से, और आप बहुत And yes, empathetic, compassionate, sensitive human being है. So you have learned a lot of lessons. और ये सब लेसन्स प्रूव करते हैं कि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, कितना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है. तो कोई एक एग्जांपल, कुछ एक इंस्टेंस आप बता सकती हैं? yes.
Many years back, I had gone to Wipro and I met the HR head of Wipro, Isaac. And मैं आइजैक को कहती हूँ कि आई मीन आई यूज्ड टू से यू गाइज आर डेमी गॉड्स और समथिंग। वो कहाँ से माइंडसेट लाए कि सारी पोजीशन सबके लिए ओपन करेंगे, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा कि कोई डिसेबल्ड पर्सन नहीं आ सकता है या ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए खुला है। Yeah. आप आइए, आप इंटरव्यू दीजिए और अगर आप अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हैं उस काम के लिए तो वील टेक यू ऑन। और उसके बाद जो भी वर्क प्लेस में एडजस्टमेंट्स करनी है वो हम साथ साथ करेंगे। दैट शुड बी द माइंडसेट। I found it amazing. I kept looking at him and I still look up to him. Mm-hmm. That this is the mindset which should work. And then I went to Wipro. I had to interview and see the best practices. एक best practices की study कर रहे थे. And Wipro told me TCS is better than us, you know. Okay. I have learned everything from TCS, that they are much better, that they don't think twice before taking a person with disability on a role. हमें तो फिर भी करना पड़ता, मेरे को कन्विंस करना पड़ता है, मुझे अभी भी सेंसिटाइज करना पड़ता है अपने लोगों को, लेकिन टीसीएस में तो सेंसिटाइजेशन बहुत आगे के लेवल की है। Mm-hmm. तो ऐसा है ही नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, इतनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं, यू नो। Yeah. और जब मैंने वहां जाके देखा, सो देयर वाज अ ब्लाइंड गर्ल वर्किंग इन अ लीडरशिप रोल एंड शी आई वाज टेकिंग हर इंटरव्यू एंड शी टोल्ड मी ऐसा नहीं है कि सब कुछ इंक्लूसिव है ऑलरेडी, लेकिन यस, डिजिटल इंक्लूजन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और उसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ती है, लेकिन सब सुनते हैं, समझते हैं कि अच्छा ये काम आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो हम आपको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, हमें आपको इंक्लूड करने के लिए रास्ते निकालने। और मुझे याद है दैट ही आइजैक टोल्ड मी दैट मैं क्यों नहीं इंक्लूजन लाऊं, मेरे भी तो क्लाइंट हैं हर तरह के, और जितनी मैंने डाइवर्सिटी लूंगा Mm-hmm. वो जो सॉल्यूशंस देंगे आईटी में, क्योंकि मेरी आईटी की फर्म है मान लीजिए, तो उसमें आईटी सॉल्यूशंस अगर एक डिजेबल्ड पर्सन लाता है तो उसके जैसे कितने लोग हैं जो मेरा सॉल्यूशन खरीदेंगे और यू नो मेरे लिए क्लाइंट बढ़ेंगे। तो इंक्लूजन ऑलवेज मीन्स बिजनेस। Yeah. Yeah. दैट इज अ लर्निंग that we all have to bring on the table. Mm-hmm. That diversity and inclusion means more business. You know, Yeah. you वो never intent know. and that intent should be there कि हम करना चाहते हैं। Absolutely. And I learned another thing from him. This was 10 years back, I think. And he said that हम ये भी नहीं शुरू में लिखते हैं कहीं कि ये इंसान डिसेबल्ड है, इसकी डिसेबिलिटी क्या है। But after some time, we run a kind of a survey in the office, in the organization. If you want, please open your disability and tell us what kind of adjustments you require. Yeah. How wonderful is that, Abha? Yeah. Because there are so many disabilities which are hidden, which are unseen, and people might not be coming out to talk about them. True, true. But if you are that inviting and inclusive, people might want to come and tell you, this is my limitation, please change it. How many of us are getting older? We don't want to take stairs or whatever, you know. Yeah. So, and how many of us start losing our eyesight after some time? All of us want adjustments. All of us want accessibility. Accessibility is a word of welcome. Yeah. Welcoming my guests, my customers, my people. And when you welcome better, you make better business. That's a learning that I want to share, and I want to learn more and more about. So thank you, Shalini, for your time. Like बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत यूजफुल कॉन्वर्जेशन है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, जो भी देखेंगे बहुत यूजफुल। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है, और it's always a pleasure of mine whenever I'm talking to you. Thank you so much.